Hello everyone. In my last video, I had explained chapter whole number, and in this video, I will explain you chapter fraction. So first of all, what is fraction? A fraction indicates equal parts of a whole. Equal parts means fraction is equals to part upon whole. It means, suppose 1 upon 3. 1 upon 3 means one whole thing is divided into 3 equal parts and one part out of these 3 parts is taken. Suppose it's a pizza. क्या है ये? Suppose it's a pizza and we want to share equally one pizza between the 3 children. हम 3 children में से equally divide करना चाहते हैं. So we will divide like this, 3 equally parts like this. Then each child would get 1 upon 3 of the pizza. This part is known as 1 upon 3. 1 upon 3. 1 upon 3. It means the total part is, whole part is 3 and each child get 1 upon 3 of the pizza. The part is 1. तो हर child को कितना मिला? 1 upon 3. And in this fraction, it means 1 upon 3 means that one whole thing is divided. Whole thing कितने में divide है? 3 equal parts में. And one part out of these 3 parts is taken. Okay. And the upper part is known as the numerator. The upper part is called the numerator. And the lower part is known as the denominator. Understand? It is called fraction. Like this, in terms of fraction, 1 upon 3. It means, 3 means whole thing. Whole thing is divided how many parts? In this 1 upon 3, whole thing is divided into 3 parts. 3 equal parts and one part out of these 3 parts is taken. It means 1 upon 3. And the upper part is known as the numerator and the lower part is known as the denominator. So it is fraction. And now types of fraction. There are many types of fraction. The first is like fraction. Like fractions. Like fractions हमारे क्या होते हैं? All having the same denominator. It means जिनके denominator same होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Like fraction. Just like 5 upon 8, 4 upon 8, 7 upon 8, 1 upon 8, like this. Look at this. 5 upon 8, denominator is 8, 4 upon 8, again denominator is 8, denominator is 8 and 1 upon 8 is denominator is 8. It means जिनके denominator same होते हैं, all having the same denominator are called the like fractions. And the second is unlike fraction. The second type of fraction is unlike fraction. So unlike fractions, all having different denominator. जिनके denominator different होते हैं. Suppose 1 upon 4, 4 upon 5, 7 upon 8, 8 upon 9. All are having the different denominator. इनके denominator क्या है? Same नहीं है. सबके different हैं. So these are called the unlike. Like fraction having the same denominator. And the unlike fraction having the different denominator. These are the difference, like and unlike. The next is, the third one type of fraction is proper fraction. So what is proper fractions? Fraction in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction. Just like 1 upon 4, 5 upon 6, 8 upon 9, 9 upon 13. It means numerator क्या है हमारा? Denominator से कम है. It means in which numerator is less than the denominator. जिसमें हमारा numerator denominator से कम होता है, उनको हम proper fraction बोलते हैं. So these are the proper fraction.
बिकॉज न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम है. तो दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन. द फोर्थ वन इज improper. Improper fractions, in which numerator is either equal or greater than the denominator. It means इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर हमारा होता है या तो इक्वल होता है या ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. जस्ट लाइक दिस, इक्वल जस्ट लाइक दिस 3/3 एंड ग्रेटर 7/5, 15/15. इट मीन्स इक्वल. न्यूमरेटर भी क्या है 15 एंड डिनोमिनेटर क्या है 15. सो इट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. या फिर ग्रेटर होता है 25/9. 25 इज द न्यूमरेटर एंड 9 इज द डिनोमिनेटर एंड 25 क्या है हमारा 9 से बड़ा है. सो दीज आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड नाउ द नेक्स्ट इज mixed fraction. So what is mixed fraction? Fraction like just like this, 4 5/7. It means consisting of a natural number. 4 क्या है हमारा एक natural number and a proper fraction, जिसको हम साथ में एक साथ करके लिखते हैं. It means natural number and a proper fraction written together. It is called the mixed fraction. It means हम इसे कैसे लिख सकते हैं? It is equals to 4 plus 5/7. 4 is our natural number and this is the proper fraction. It is called the mixed fraction. After some time I'll tell you how to convert this mixed fraction into proper or improper. So you know what is fraction, and after that what type of fraction, like fraction having the same denominator and in unlike having the मैं लिख देती हूँ having same denominator. So having same denominator are called the like fraction, and in unlike fraction having different denominator. And in proper fraction में क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज less than denominator. And this is the sign of less than. And improper fraction में क्या होता है, improper fraction में numerator is either say equal और greater than. या तो वो equal होता है 3/3, 15/15 या फिर greater than होता है. equal or greater than the denominator. And this is the mixed fraction. Mixed fraction is the consisting of a natural number, 4 is a natural number and a proper fraction written together. जब हम उन्हें साथ करके लिखते हैं, it is called the mixed fraction. So I hope now you understand types of fraction. Next fraction is equivalent fraction. Equivalent fraction is, it means having same value, जिनकी value same होती है but different numbers होते हैं. Suppose just like this, for example 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. It means ये क्या है हमारे different numbers हैं. All are different numbers, 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8. But all are having the same value. इनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है. कैसे? अगर आप 2/4 को रिड्यूस करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2. 3 1 3, 3 2 6. आंसर इज 1/2. 2 2 4, 2 4 8. And again 2 1 2, 2 2 4.
सो इनको हम जब तक ये रिड्यूस होते हैं तब तक हम इसको रिड्यूस करते हैं. सो इनकी वैल्यू क्या है? सेम, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. But these are the different numbers. These type of fraction are called the equivalent fraction. Suppose, for example, अगर आपको कहा जाए if question is 3 equivalent fraction of 3/7, हमें 3/7 के 3 equivalent fraction चाहिए. It means 3 equivalent fraction of 3/7. तो हम 3/7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सपोज इफ वी रिड्यूस द नंबर, देन वी इफ वी वांट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, तो हम इसको सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इफ न्यूमरेटर and denominator of the given fraction are multiplied and divided by the same non-zero number. It means अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो सेम होता है. इट मीन्स दैट डज नॉट चेंज इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड. सपोज वी वांट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 हमें इसके फ्रैक्शन चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 7 2 14. अब इसको 3 से 3/7, 3 3 9 एंड 21. अगेन 3/7 इंटू 4 इंटू हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 4 से 12/28. तो हमारे पास आंसर क्या आया? फर्स्ट में हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 2 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट में 3 3 से, नेक्स्ट में 4 4 से. अगर हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होगा तो हम इसे अगेन 5 5 से करेंगे. सो वी गेट 6/14, 9/21 एंड द 12/28. अगर हम इन्हें रिड्यूस करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी. लुक एट दिस, 2 3 6, 2 7 14. इट मीन्स हियर इट इज 3/7. यहाँ पर हमारे किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था? 3/7 का. इसको रिड्यूस करने पर क्या आ रहा है? 3/7. नेक्स्ट 9/21. इट मीन्स 3 3 9 एंड 3 7 21. अगेन 3/7. अब हम इसको भी करेंगे. 4 3 12 एंड 4 7 28. अगेन 3/7, 3/7, 3/7. इट मीन्स अगर हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 3/7 के, तो उसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हुए? 6/14, 9/21, 12/28. लाइक दिस वी विल इवेल्युएट दिस. एंड नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपको पता है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं, इट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर. मिक्स फ्रैक्शन इज नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 5/8 है, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? 3 + 5/8. You know 3 is a natural number and the 5/8 is a proper fraction. So convert this into an improper fraction. We multiply the denominator and look at this. For conversion, we will multiply. It means 8 with the natural number. हम इसको क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. 8 3 24. एंड नाउ न्यूमरेटर के साथ हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दिस वन जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? ऐड. इट मीन्स क्या हो गया? 3
सपोज 3 5/8 है, तो 3 into 8 plus 5/8. Denominator remains the same. So the answer क्या होगा? 24 plus 5/8 and equals to 29/8. Like this we will convert mixed fraction into improper fraction. Again I'll tell you, if you want to convert mixed fraction into improper fraction, then first you will multiply. डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? इस नेचुरल नंबर से. तो 8 3 ज़ा 24 एंड 24 को फिर ऐड करेंगे ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से. तो 24 and 5 29 एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. लुक एट दिस. 3 into 8 24 plus 5/8 and again 29/8. It's a improper fraction. Like this we will convert. Next is improper fraction into mixed fraction. It means अब हम improper fraction को mixed fraction में कैसे change करेंगे. Okay, suppose for example हमारा improper fraction है 25/7. तो अगर हम इसको डिवाइड करें 25/7 को like this, आप कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे डिवाइड करते हैं ना. 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर कितना आया? 4. तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. और 3 को क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट. QUOTIENT. ओके, अगर हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा रिमाइंडर आएगा एंड द 3 हमारा क्या आएगा? क्वोशिएंट. तो इसको हमें कैसे लिखते हैं? द फॉर्मूला इज, अपने 25/7 है तो द फॉर्मूला क्या होता है? क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर. लाइक दिस वी विल राइट. तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 3. सो तो आंसर क्या हुआ? 3, रिमाइंडर इज 4 एंड द डिवाइजर इज 7. सो लाइक दिस वी विल राइट. इट मीन्स 25/7 क्या है हमारा? इम्प्रॉपर. और 3 4/7 हमारा क्या है? इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन. लाइक दिस वी विल कन्वर्ट improper fraction to mixed fraction. 3 4/7. 3 is the whole number and the 4 is the remainder and the 8 is a divisor. Like this we will convert. Next is how to convert unlike fraction into set of like fraction. हम like fractions में कैसे change करेंगे? तो you know like fractions क्या होते हैं? Like fractions हमारे वो होते हैं जिनका denominator same होता है. For example, suppose 1/8, 2/3, 3/2. इनके क्या हैं? These are the unlike fraction and we want to change into like fraction. It means उनके denominator क्या होने चाहिए? Same होने चाहिए. तो how to convert unlike fraction into like fraction? So first of all हम इसका क्या लेंगे? LCM लेंगे. सो आपको पता है एलसीएम किस तरह से लिया जाता है? 8 3 2. आपने पहले से किया हुआ है. 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड नाउ लास्ट इज 3. सो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 2 ज़ा 6, एलसीएम हमारा आ गया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 into 24. एलसीएम है 24. इट मीन्स हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा? 24. सो द फर्स्ट इज 1/8, सेकेंड इज 2/3 एंड 3/2. सो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की, 1 into 8 into 3, तो 3/24. इसमें कितने की करेंगे? 2 into 8, 3 into 8, then 16/24, 3 into 12, 2 into 12. सो ये क्या आ गया? 36/24. क्योंकि हमें इनके क्या करने हैं? डिनोमिनेटर सेम करने हैं. तो सेट ऑफ फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन क्या आ गए? 3/24, 16/24, 36/24.
Like this we will convert unlike fraction to like fraction. एक बार और, if you want to convert unlike fraction into like fraction, क्या होते हैं like fraction? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम लेंगे. हमारा एलसीएम कितना आया? 24. इट मीन्स हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम 24. देन वी विल मल्टीप्लाई बोथ. आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज 3/24, 16/24 एंड 36/24. लाइक दिस वी विल डू. द नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म्स क्या होती हैं हमारी? इट मीन्स लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म्स में. इट मीन्स उसको सबसे लोएस्ट टर्म में डिनोट करना इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म. सपोज 35/135. अगर आपका क्वेश्चन आता है कि 35/135 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सो आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करोगे? इसको हम डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से. सो 35 डिवाइडेड बाय 5 एंड 135 डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 7 35 एंड 5 2 10 एंड 5 ओके. तो 7/27. इट मीन्स अब ये इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता सेम नंबर से. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सपोज फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल इज 140/252. तो आप इसको पहले 2 से डिवाइड करिए. 140 को 2 से और 252 को भी 2 से डिवाइड करो. 2 7 यहाँ आ गया 70/2 1 2 2 2 4 126. अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है. तो आंसर इज 35/63. अब इसको हम फिर से ऐसी डिजिट से करेंगे. 7 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों. द आंसर इज 5. 7 9 63. एंड नाउ 5/9. इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब 5/9 क्या है हमारा? और डिवाइड नहीं हो सकता. सो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? उसकी लोएस्ट टर्म में उसको लिखना, इट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म. एंड इन फ्रैक्शन नेक्स्ट आता है कि हम फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें. तो अगर इफ़ वी वांट टू फ्रैक्शंस को हमें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता है, तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू कन्वर्ट, क्वेश्चन इज 1/7, 7/15, 11/21 एंड 17/35. इसको किस में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा. तो हम इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आ जाएगा? 7, 15, 21 और 35 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 105. तो जैसे हमने अभी चेंज करने में किया था, अनलाइक को लाइक में किया था, हमें इनके डिनोमिनेटर सबके सेम करने पड़ेंगे. उसके बाद ही हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं. सपोज द फर्स्ट इज 1/7. सो 1/7 का हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 105. तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, डिनोमिनेटर की भी और न्यूमरेटर की भी. सो आंसर क्या आ जाएगा? 15/105. नेक्स्ट इज 7/15. इसकी करने के लिए 7 7 49 एंड 15 7 105. इसका डिनोमिनेटर भी 105 आ गया. नेक्स्ट इज 11/21. अगेन इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. द आंसर इज 55/105. द लास्ट वन इज 17/35. अगेन 17 into 3 and 35 into 3. आंसर इज 51/105. तो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास आंसर आया है
15/105, 49/105, 55/105 एंड द 51/105. अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा हमारा ये है, तो आंसर इज 55/105, फिर 51/105 एंड आफ्टर दैट 49/105 और लास्ट में 15/105. आप इसे अगर क्वेश्चन असेंडिंग आता है तो आप असेंडिंग में पहले छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा. लाइक दिस यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड नाउ द लास्ट इज fractions on a number line. This is the last one topic of fraction. So number line क्या होती है आपको पता है. This is a number line. बीच में 0 होता है. आफ्टर दैट राइट साइड पे आप लिखते हैं 1 2 3 एंड इसको आगे हम बढ़ा लेंगे. और इधर की साइड हमारा क्या होता है, -1 -2 -3. लाइक दिस वी विल राइट द नंबर लाइन. सो सपोज अगर हमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन में डिनोट करना हो, नंबर लाइन में दिखाना हो, तो हम कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, द क्वेश्चन इज 5/8 और 11/8. आपको इसको 5/8 और 11/8 को नंबर लाइन पर शो करना है. तो आप कैसे करेंगे. सो बोथ आर द पॉजिटिव डिजिट. इट मीन्स वो कहाँ पर शो होंगी, आफ्टर द 0. हियर इट इज. यहाँ पर अगर ये माइनस में होता तो हम इसे इधर शो करते, बट बोथ आर द 5/8 एंड 11/8 इज द पॉजिटिव डिजिट. तो हम यहाँ से करेंगे. तो इसमें हम लुक एट दिस नंबर लाइन. तो हम इसमें जो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इट मीन्स जो गैप होता है बिटवीन इसके बीच में, उसको हम इक्वली होल पार्ट में डिवाइड करेंगे. इनका होल पार्ट क्या है, 8. इट मीन्स 0 से 1 के बीच में हम कितने पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, 8 में. 1 से 2 8 में, 2 से 3 8 में. लाइक दिस, लुक एट दिस. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हम वो लास्ट वाला ही लेंगे. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे. इट मीन्स जो उसका होल पार्ट होता है, हम द गैप बिटवीन 0 एंड 1, जो 0 और 1 के बीच में गैप है, 1 और 2 के बीच में गैप है, उसको हम उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. इन दिस क्वेश्चन द होल पार्ट इज 8. तो हमने 0 और 1 और 1 और 2 के बीच में 8 में डिवाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. और अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. अब हमें क्या मार्क करना है, 5/8 एंड 11/8. सो वी विल काउंट फ्रॉम हियर. अब 5/8 हमारा कहाँ होगा, 1 2 3 4 5. ये दिस पॉइंट शो द 5/8 एंड 11/8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here it is 11/8. Like this we will represent fraction on a number line. I hope children now you understand fraction, type of fraction, equivalent fraction, and how to represent a fraction on a number line, how to convert unlike fraction to like fraction. I hope now you understand. Agar if you don't know anything and if you have any doubt, then you can write in comment box. And children, in next video I will explain you exercise of chapter fraction from the book Mathematics Today. Okay everyone, then subscribe my channel and share my video if you like this video. Okay everyone, thank you so much.